السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کسی گھر، کسی خاندان کے نجی معاملات کو جتنا چھپایا جائے اتنی ہی اس کی اولاد اسے برہنہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ سب کچھ جو اس گھرانے میں ہوتا رہا ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور ایسا کھلتا ہے کہ دنیا نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ تھو تھو کرتی ہے۔ اور جو لوگ اس بات کی باریکیوں کو اور مسائل کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ اپنی اولادوں کی اور خاندان کی فکر مندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لاہور کے ایک بڑے اسکول کی 3 طالبات نے اپنی کلاس فیلو کو جس طرح ٹارچر کیا ہے، اس نے نہ صرف اس اسکول کے ماحول کو کھول کر رکھ دیا ہے بلکہ اسکول انتظامیہ کی معاملات پہ کمزور گرفت کو بھی واضح کر دیا ہے، اور منظر عام پر یہ معاملہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان لڑکیوں کا حلیہ، ان کی بد زبانی، ان کا اسٹائل، ان کا فیشن، ان کے خاندان کی تعریف بہت اچھی طرح دنیا کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ ان لڑکیوں نے جس طرح پٹک پٹک کر بال پکڑ کے مارا ہے اس بچی کو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں کسی ایسے خاندان کی ہیں جہاں ماں باپ کے درمیان تشدد بہت اچھی طرح ایک دوسرے پر کیا جاتا ہے، اور والدین کے آپس میں تعلقات ایک دوسرے پر آشکارا ہوتے ہیں۔ اولاد والدین کا آئینہ ہوا کرتے ہیں، لیکن اب ماحول کا بھی عکس ہوتے ہیں۔ گیجٹس جب سے نئی نسل کے ہاتھوں میں آئے ہیں تب سے معاشرے کے، خاندان کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گو کہ زندگی آسان ہو گئی ہے، لیکن ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور پہلے سے زیادہ آنکھیں کھلی رکھنے اور ذہن وا رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اساتذہ کرام بعض اسکولوں میں اس وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کہ اگر 15 دن کے بعد تک 20 دن کے اندر کوئی طالب علم بال کٹوا کر نہیں آتا ہے تو ٹیچر کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں ٹیچر بس قینچی لے کر آنے والی ہے، اور طالبات کو بال کٹوانے کے لیے تو نہیں کہا جاتا، لیکن انہیں بالوں کو باندھ کر چٹیاں بنا کر آنے کے لیے کہا جاتا ہے، انہیں پنی بنا کر آنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک فیشن کا تعلق ہے تو جو باذوق طالب علم ہوتے ہیں وہ فیشن کرتے ہیں، لیکن گھر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب وہ صبح تیار ہو کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ماں باپ روکتے ٹوکتے ہیں، مائیں روکتی ہیں کہ یہ تم کس طرح تیار ہو کر جا رہی ہو۔ امریکہ کی ایک مشہور ترین ڈاکٹر شبانہ سکندر کی زندگی کو دیکھا ہے، جنہوں نے کووڈ کے دوران امریکہ میں بہت اچھی طرح اپنے فرائض ایمرجنسی میں انجام دیے۔ جب وہ کراچی میں تعلیم تھی تو وہ تیار ہو کر جایا کرتی، وہ پوزیشن ہولڈر تھی، وہ جب تیار ہو کے جایا کرتی تھی تو ان کی والدہ انہیں بہت روک ٹوک کرتی تھی، حالانکہ وہ بہت پڑھاکو اسٹوڈنٹ تھی اور بہت اچھا پڑھتی تھی، اور زیادہ تر ان کی توجہ، بلکہ ان کی مکمل توجہ پڑھائی پہ ہی تھی۔ اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے جو MBBS کر رہی ہے، وہ بھی جب تیار ہو کے جاتی ہے تو عموماً میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی جلدی میں ہوتی ہے کہ وہ کپڑوں میں بھی توجہ نہیں دیتی، بلکہ وہ اسی طرح جانے لگتی ہے۔ تو میں اسے کہتی ہوں کہ تم ایک مستقبل کی ڈاکٹر ہو اور تمہیں بہت اچھی طرح سے کم از کم لباس ایسا پہننا چاہیے کہ لگے کہ تم ایک تعلیم یافتہ ہو۔ لیکن بالوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کو نیلا کروا لینا، پیلا کروا لینا، چلو کہیں کہیں پہ کوئی اسٹائل اور ڈیزائننگ تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی کلر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس طرح اس مار پیٹ کرنے والی لڑکی کو ویڈیو میں دنیا نے دیکھا کہ اس کے بال نے ایک نئے، اس کی ایج دیکھیے اور اس کے بالوں کا کلر دیکھیے، کھلے بال۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ تعلیمی اداروں میں بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بالوں کو باندھ کر آئیں یا چٹیاں بنا کر آئیں۔ اس طرح اپنے دراز زلفیں، گویا وہاں کوئی فیشن شو ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ ہو رہا ہے گیسو درازی کا یا آرائش گیسو کا۔ تو اس طرح سے یہ کیوں سامنے آیا واقعہ کہ ایک تو گھر میں ان کے روک ٹوک نہیں ہے، دوسرے ان کے اسکولوں میں روک ٹوک نہیں ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں نہیں ہے۔ روک ٹوک دوستوں بہت ضروری ہے،
कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को रोकना टोकना नहीं चाहिए, बच्चों को बहुत छोटी उम्र से रोकना टोकना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। उन्हें कैसे पता चलेगा? वो तो छुतर बेमहार की तरफ चल पड़ेंगे, जिस तरह इस वीडियो में सामने आया जो लड़कियों का हुलिया। इनके वालिदैन को अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। पता चल गया कि वो कौन है, क्या है और कैसे हैं, और उनका क्या आपस में एक दूसरे के साथ रवैया है और क्या सूरत हाल है। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जब कैंटीन में ये पुरतशद्दुद कार्रवाई की जा रही थी, बताया जा रहा है कि कैंटीन का स्टाफ खड़ा होकर देख रहा था। कैंटीन का स्टाफ उनको छुड़ा भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बच्चों के वालिदैन वो होते हैं जो फ़ौरन कंप्लेन लेके आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को डांटा, या एक स्टाफ ने मेरे बच्चे के का हाथ पकड़ा या उसे छुड़ाया, ये इसको क्यों रोक टोक की गई, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। कराची में भी बड़े स्कूल है जहाँ होते हैं, लेकिन लड़कियों की पुरतशद्दुद कार्रवाई का मेरी अब तक की ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है जिसे दुनिया दिखा रही है, जिसे पड़ोसी मुल्क भारत में भी अखबारों में रिपोर्ट किया गया है, वीडियो इसकी वायरल की गई है और ये दिखाया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि वहाँ पे खड़े होकर वीडियो भी बनाई जा रही थी, वहाँ उनके जो बॉयज़ दोस्त हैं उनकी आवाज़ भी आ रही थी, और उनको बताया जा रहा था कि इस एंगल से नहीं, इस एंगल से वीडियो बनाओ। गुज़िश्ता दिनों एक कराची में फ़ैशन स्कूल की तालिबा का मसला सामने आया। वो फ़ैशन स्कूल है और वहाँ आर्ट, डिज़ाइनिंग, फ़ैशन, टेक्सटाइल ये सब सिखाया जाता है, और वो बच्ची यही सब सीख रही थी। और उनके एक क्लास का हिस्सा भी है, उनकी तालीम का एक हिस्सा भी है कि अपने आप को किस तरह ड्रेसअप करना और किस तरह किस तकरीब में शरीक होने के लिए किस तरह तैयारी करती हैं, और जब इस कॉलेज में आओ तो किस तरह तैयार होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों वहाँ भी ये सवाल उठा कि आप इतना फ़ैशन क्यों करती है। तो उसने कहा मुझे तो यही बताया गया है कि आपको हर रोज़ ड्रेस अप होके आना है, हर रोज़ तैयार होके आना है, क्योंकि आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं। आखिर में उसको टीचर ने कहा कि आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं। ये बात बिल्कुल सही थी। अगर आप सीखने के मराहिल में हैं तो आपको उसी तरह से तैयार होकर रहना होगा। लेकिन ये कि तालीम कुछ है नहीं, मारपीट हो रही है, और फैशन तो ऐसे ऐसे आप कर रही हैं कि जैसे कोई एक्ट्रेस करती है, कोई फिल्म एक्ट्रेस करती है, कोई मॉडल करती है। अगर आप इन फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल्स की निजी ज़िंदगी को देखें, कभी इनको आम ज़िंदगी में देखें, तो ये बहुत सिंपल होती है, ये बहुत सादा होती है। तो जो उनके प्रोफेशन का तकाजा है ये उस तरह तैयार होती है। तालीमी इदारों में बच्चों के दरमियान बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, बदलिहाज़ी, मारपीट, आपस में झगड़ना, एक दूसरे को बुली करना, ये सब बहुत आम है, और इसको कंट्रोल करना स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ऐसा भी होता है कि जब बच्चा स्कूल से घर जाता है तो टीचर अमूमन पेरेंट्स को बुला के ये पूछते हैं कि इसका रवैया ऐसा क्यों था, इसने होमवर्क नहीं किया, इस आजकल इसके ये सूरत हाल है, आजकल इनकी गुफ्तगू ये है, आजकल इनका अंदाज ये है, इन दिनों ये देर से आते हैं। और अगर बच्चा घर आए तो फिर वालिदैन अगर उसका बदला हुआ रवैया देखते हैं तो फिर वो असातिज़ा से पूछते हैं कि स्कूल से आने के बाद इसकी ये सूरत हाल होती है, क्यों होती है, क्या वजह है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, या फ़लाँ सब्जेक्ट से भागता है, या फ़लाँ टीचर का ज़िक्र ये अच्छे अंदाज में नहीं करता है। ये दोनों असातिज़ा और वालिदैन मिल के इस इदारे के ज़रिए जिसमें उनका बच्चा ज़ेर तालीम होता है, एक नस्ल को परवान चढ़ाते हैं। तालीम और तरबियत दोनों तरफ से होती है, दोनों की ज़िम्मेदारी होती है। ये नहीं कि हम स्कूल के ऊपर डाल दें, स्कूल का है ये बच्चा तो घर में ज़्यादा माँ बाप के दरमियान, ख़ानदान के दरमियान ज़्यादा वक्त गुजारता है, हमारी ज़िम्मेदारी इतनी नहीं है जितनी उनकी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी दोनों की है। ये वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहर लाहौर के डिफेंस के इलाके में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, ये मारपीट का वाक़या, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उस बच्ची को, अलीहा इमरान को, इसलिए मारा कि वो इन्हें नशा करने से रोकती थी। ये नशे की भी आदी हैं ये लड़कियाँ। ये 3 बहनें हैं और नशे की आदी थी। वो तो इनका स्टाइल बता रहा है कि वो किस किस चीज़ की आदी है। और इन्होंने इस लड़की को इसलिए मारा कि ये उन्हें मना करती थी नशा करने से। एक और बात सामने आई है कि इस लड़की का रिज़ल्ट सही नहीं था, वो फेल भी हुआ करती थी। तो ये बच्ची अलीहा इमरान जो मार खा रही है, इनकी क्लास फेलो थी, तो
उस बच्ची के वालिद ने इनसे कभी पूछा था कि इसका रिजल्ट इतना क्यों ख़राब आता है, क्या वजह है कि ये इस तरह की है पढ़ने में, तो उस बच्ची ने कुछ बता दिया था उसके बारे में। तो ये मारपीट की भी वजह एक सामने आई है। और दूसरी वजह यह है कि वो अपने साथ इसको भी शरीक करना चाहती थी नशे में, जो वो नहीं शामिल हुई, बल्कि उसने उन्हें मना किया। और ये जो बच्ची मार खा रही है, वहीं पे इसका एक छोटा भाई भी खड़ा था जो चीखो पुकार कर रहा था, लेकिन उसकी भी आवाज़ नहीं सुनी। अगर किसी ने इनको नहीं बचाया तो उस छोटे बच्चे की भी आवाज़ नहीं सुनी किसी ने कि वो क्या कह रहा है। तालीमी इदारे के अंदर जो वॉशरूम होते हैं, जो कोने खुदरे होते हैं, जो कैंटीन होते हैं, इसमें से कोई जगह भी सुनसान वीरान नहीं होती। असातिज़ा को और वहाँ के अमले को, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को मालूम होता है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नज़र रखनी है। इसके बावजूद ऐसा हुआ कि एक बच्चा चीखता रहा कि उसकी बहन को बचाया जाए, उसकी बहन को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी बहन को 3 शैतान बदमाश सिफत लड़कियों ने बालों से पकड़कर, एक ने नीचे गिराया और 2 ने उसके ऊपर सवार होकर, और चौथी उनकी कोई कज़न भी थी, उन्होंने मारपीट की। अच्छा, इसके अलावा ये हुआ जो और भी इससे संगीन है कि स्कूल इंतज़ामिया ने वीडियो डिलीट कर दी, जो भी सीसी कैमरा टीवी लगा हुआ था उनके अंदर, और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपने किसी मामले को इस तरह पब्लिक नहीं कर सकते, हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम इसे देखने नहीं देंगे किसी को। वालिदैन ने ये किया कि अपनी बेटियों का 50,000 रुपए के एवज ज़मानत ले ली। ये है इनका मुस्तकबिल, ये है इनका हाल, और ये जो हाल है ये बदहाल है। बात यह है कि हमारे यहाँ गोशुमाली नहीं होती, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ दोस्ती यारी चलती है और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते रहते हैं। अगर स्कूलों के मामलात को सख्ती के साथ देखा जाए तो हम अपनी नस्ल को सही तैयार कर सकते हैं। किसी फ़िलासफ़र ने कहा है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। ये इन मुस्तकबिल की माँओं का हाल है और मुस्तकबिल की कौम का हाल है। हम सब का अल्लाह ही हाफ़िज़ है।